See, I am teaching you this for multi-source shortest path, Floyd-Warshall algorithm. And in Floyd-Warshall algorithm, I already taught you in last class. If there are three nodes, then your matrix, कितने by कितने का matrix you have to create? You have to create, if there are three nodes, you have to create 3 by 3 ka matrix. 1, Yes, sir. 2, and 3. 1, 2, and 3. You have to create 3 by 3 ka matrix. In 3 by 3 ka matrix, what you will write? If from 1 to 2 I am going, you will write 8. From 1 to 2, 8. And 1 to 3 you are going. So 1 to 3 you have to write, you will write 5 value. While you are going from 3 to every value you have to write 1 to 1, that means you are on the same node than 0. And 2, 2 to 2, 0, because you are on the same node, you have not to move anywhere. And 3 to 3 is also 0. Now 2 to 1, 2 to 1 you are going, weight is 2. And 2 to 3, I am talking about directly going. That means there is no intermediate, there is no intermediate path. That means going directly from 3 to 2, I have already say directly going from 1 to 3, it is 5. But there is no path directly from 2 to 3. So if there is no path from 2, there is path from 3 to 2, but there is no path from 2 to 3. So we will write infinite. There is no path from 2 to 3. Now I will see path from 3 to 2, 3 to 1. First I have to see. 3 to 1, there is no direct path. So I will write here infinite. And now I will check. Now I will check path from 3 to 2. 3 to 2 path I will check. There is one value. Matlab one weight it is taking. So I have written here 1. So D0 means there is no intermediate vertex. That means we are going directly. That means we are going directly. There is no intermediate vertex. Suppose I am going directly from 3 to 2, no intermediate vertex is between them. So that is known as D0. That means no intermediate vertex while going. Directly we are going. So in the similar fashion, we will create S. S table will tell you the path from where to where you have to move. That means 1, 2, and 3. This means that from 1 to 1 I am going, that means nothing I have to do. From 2 to 2 I am going, nothing I have to do. And from 3 to 3 I am going, I have not to do anything on the same node. Now 1 to 2 I am going, that means I am going to 2. Matlab I am going 1 to 2, that means destination I am considering as intermediate path. 1 से 2 I am going, destination I am considering as intermediate path. ठीक है, तो 1 से 2 I am going, I have written 2. 1 से 3 I am going, I have written 3. Destination वाला. 2 to 1 I am going, I have written 1. 2 to 3 I am going, I am writing 3. And 3 to 1 I am going, I am writing 1. And 3 to 2 I am going, I am writing 2. Now it was no intermediate vertex. Suppose I am considering one vertex as an intermediate vertex. Suppose I am going from one vertex. Suppose I am going from 2 to 3 vertex. 2 से 3 वर्टेक्स जा रहे हैं. अभी मैंने क्या कंसीडर किया कि कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं होगा. There will be no intermediate vertex in D0. Now I am considering one intermediate vertex is there. Now I am considering one intermediate vertex is there, that is D1. While I am calculating D1, that means one intermediate vertex I am taking. While calculating D1, I am considering one intermediate vertex. So one intermediate vertex I am considering. अगर एक intermediate vertex होगा तो adjust कितनी हो सकती हैं? If there is only one
intermediate vertex, then how many edges are possible? मान लो से 2 से 3 जाना है, एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स यूज कर सकते हैं, तो कितनी एडजस्ट होंगी? मैक्सिमम मैक्सिमम विल बी 2 एडजस्ट। एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स 2 से, मान लो 1 आई एम कंसीडरिंग इंटरमीडिएट वर्टेक्स, 2 टू 1 जाना होगा एंड 1 से 3 जाना होगा, अगर एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर कर रहा है। तो आई एम कंसीडरिंग 1 इंटरमीडिएट वर्टेक्स, so while I am considering one intermediate vertex, while I am considering one intermediate vertex, that means one as I am मतलब एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स हो सकती है एंड k इज इक्वल टू 1, आई एम प्लेसिंग इंटरमीडिएट वर्टेक्स एज 1। पहली वर्टेक्स को मैं इंटरमीडिएट वर्टेक्स मान रहा हूँ, पहली वर्टेक्स को मैं क्या मान रहा हूँ? इंटरमीडिएट वर्टेक्स। ओनली वन वर्टेक्स कैन बी इंटरमीडिएट वर्टेक्स, इन माय केस आई एम k is equal to 1, that means 1 I am choosing as my intermediate vertex। तो इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 अगर चूज कर रहे हैं तो while I want to go 1 to 1, while I want to go 1 to 1, 1 से 1 जाना है और इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 को मान रहे हैं, दैट मीन्स 1 to 1 I am going and 1 from this 1 I am going to this 1। दैट मीन्स our formula was, our formula क्या था कि if I am finding dij, if I am finding dij, my formula was that if I was finding dij, तो अगर kth इंटरमीडिएट वर्टेक्स ले रहे हैं तो आई विल चेक मिनिमम कौन सा है, मिनिमम मिनिमम डी आई जे। एक तो डायरेक्टली आई एम गोइंग आई टू जे, आई एम गोइंग डायरेक्टली डी आई जे। और दूसरा क्या हो सकता है कि आई एम गोइंग थ्रू डी में जा रहा हूं, डी आई एम गोइंग थ्रू आई टू के, पहले मैं कहा जा रहा हूं? आई टू के जा रहा हूं। आफ्टर दैट आई एम गोइंग फ्रॉम के टू जे प्लस आई एम गोइंग के टू जे, के टू जे। देखो इसमें क्या है कि एक तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ 2 to 3, but if I am considering kth as my intermediate vertex, in my case first vertex I am considering intermediate vertex, तो पहले मुझे I से मतलब 2 से कहाँ जाना पड़ेगा? k पे जाना पड़ेगा, मतलब मेरा 1 है k, तो 2 से 1 पे जाना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट 1 से 3 पे जाना पड़ेगा, दैट मीन्स k is 1 in my case। so first of all 2 to 1 and 1 to 3। या मैं डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली पाथ है तो मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूँ। तो मिनिमम कौन सा है? अगर डायरेक्टली पाथ है 2 से 3, मान लो 2 से 3 5 बेट है और यहाँ पे बेट मान लो 1 3 कुछ भी आ रहा है, तो इस पाथ से जाएंगे तो 5 बेट लग रहा है, इस पाथ से जाएंगे तो 1 + 3 4 बेट लग रहा है। तो मैं कौन सा, मान लो इस केस में 2 से 3 आई इज 2 एंड 2 से 3 जाना है, 2 नोट से 3 नोट, दैट मीन्स आई इज 2 एंड जे इज 3, आई वांट टू गो फ्रॉम 2 to 3। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि आई से जे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम आई टू जे, तो आई टू जे जाने में कितना लग रहा है? 5 लग रहा है डायरेक्ट जाने में। इफ आई एम गोइंग थ्रू वर्टेक्स के, अगर के वर्टेक्स से जा रहा हूँ तो कितना लग रहा है? यहाँ से यहाँ गए 2 प्लस यहाँ से यहाँ गए 3, 2 + 3 5, विच इज मतलब 1 कर देते हैं, यहाँ से यहाँ जाने का 1 लग रहा है और यहाँ से यहाँ जाने का 1 लग रहा है, 2 से 1 जाने का और 1 से 3 जाने का 3 लग रहा है, तो टोटल 4। तो विच इज मिनिमम? 4 वाला मिनिमम, तो मेरा क्या आ जाएगा? 4 मिनिमम वाला आ जाएगा। तो सिमिलर वे व्हाट आई एम डूइंग, इफ आई वांट टू कैलकुलेट डी1, मतलब 1 आई एम टेकिंग अस इंटरमीडिएट वर्टेक्स, अगर मेरा 1 इंटरमीडिएट वर्टेक्स है तो 1 1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1 1 की वैल्यू मतलब आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 1 एंड 1 to 1, तो 1 to 1 आई 1 हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो
ठीक है, this means what is happening? I'm going from 1 to 1. That means 1 to 1 if I'm going, so what will happen? If I'm going 1 to 1, तो 1 to 1 जाएंगे, that means 1 से 1 जाना है, तो 1 से 1 जाना है, k अस इंटरमीडिएट वर्टेक्स ले रहे हैं, k भी मेरा 1 है, मतलब k आई एम टेकिंग कंसीडरिंग 1 एंड 1 वर्टेक्स आई एम टेकिंग अस इंटरमीडिएट वर्टेक्स. So in this case what will happen? Okay, if I want to go from 1 to 1 if I want to go, तो डायरेक्टली जाने में कितना लग रहा है? 0 लग रहा है. if i am going if I am going 1 से 1 और 1 से 1 जाने का कितना है? 0 है. और इससे 1 से 1 जाने का कितना है? 0 है. 0 प्लस 0 तो पहले केस में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट मीन नो चेंज, सेम वैल्यू विल बी देयर. If I'm considering 1 से 2, suppose I'm considering 1 to 2, that means the intermediate vertex is 1. That means I'm going first from 1 to 1 and then I'm going from 1 to 2. तो पहले मैं देखूंगा 1 से 2 जाना है. If I want to go from 1 to 2, if I'm calculating D1 and I want to go from 1 to 2, 1 to 2 मुझे जाना है, तो पहले मैं k को क्या लिया? इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मूव फ्रॉम 1 to 1, देन आई विल मूव फ्रॉम 1 to 2. डायरेक्ट जाने का कितना लग रहा था? 1 से 2 डायरेक्टली जाने का कितना लग रहा है? 8 लग रहा है. 1 से 2 डायरेक्टली जाने का लग रहा है 8. आई विल चेक फ्रॉम दिस टेबल. 1 से 2 डायरेक्ट जाने का लग रहा है 8. और इफ आई एम गोइंग थ्रू नोड 1, अगर इंटरमीडिएट नोड 1 बनाए तब कितना लग रहा है? 1 से 1 जाने का 0 एंड 1 से 2 जाने का 8. 0 प्लस 8 नो चेंज. तो सेम वैल्यू, मतलब कोई बराबरी है, मतलब स्मॉलर नहीं आ रहा है बाई इंटरमीडिएट नोड, सो वी विल कीप द सेम वैल्यू. इफ आई वांट टू गो 1 to 3, सपोज आई वांट टू गो 1 से 3 जाना है बाई 1 अस एन इंटरमीडिएट नोड, तो 1 से 1 1 से 1 जाना है, तो 1 से 1 जाने का कितना है? 0 है. 1 से 1 जाने का 0 है और 1 से 3 जाने का कितना है? 5 है. 0 प्लस 5 5 आ रहा है. और पहले 1 से 3 डायरेक्ट जाने का कितना था? 1 से 3 डायरेक्ट जाने का था 5, मतलब सेम वैल्यू, नो चेंज. सो आई विल कीप हियर 5, सेम वैल्यू. सिमिलर वे यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू आल्सो. मान लो इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है. नाउ यू विल कंसीडर 2 से 3. सपोज आई एम कंसीडरिंग 2 to 3. सपोज आई वांट टू गो 2 to 3, तो I to J I want to go, तो K is 1, दैट मीन्स 1 इज माई इंटरमीडिएट वर्टेक्स. तो कौन सा? एक तो डायरेक्टली रूट आई कैन फॉलो, 2 से 3 में डायरेक्टली जा सकता हूँ. अदरवाइज आई हैव टू फॉलो इंटरमीडिएट नोड वाला रूट. दैट मीन्स 2 to 1 आई एम गोइंग. 1 मेरा इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, तो 2 to 1 आई एम गोइंग, प्लस 1 से 3. 2 से 1 जा रहा हूँ, देन 1 से 3 जा रहा हूँ. तो 1 से 3, 1 प्लस 3, 1 से 3 जा रहा हूँ. आई एम गोइंग थ्रू 1 से 3. तो व्हाट विल हैपन हियर कि 2 से 1 एंड 1 से 3. तो 2 से 3 में वैल्यू कितनी है? 2 से 3 में वैल्यू है इनफाइनाइट. एंड 2 से 1 जाने में वैल्यू कितनी आ रही है? 2 से 1 वैल्यू आ रही है 2. एंड 1 से 3 जाने में वैल्यू कितनी आ रही है? 1 से 3 जाने में वैल्यू है 5. दैट मीन्स 5 plus 2 7. आई एम if I'm considering 1 as my intermediate vertex, I'm getting value 7. तो एंड डायरेक्टली आई वाज गोइंग, आई गॉट द वैल्यू इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट और 7 में कौन सा बड़ा है? विच इज स्मॉलर? 7 इज स्मॉलर, सो आई विल कीप द वैल्यू 7 ओवर हियर. तो वो यहाँ पे चेंज हो गया. ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया. इफ देर इज चेंज, क्योंकि आई गॉट द स्मॉलर वैल्यू व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1.
ठीक है। तो चेंज कब हुआ, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इंटरमीडिएट बटेक्स वन, मतलब पहले अगर के को मैं इंटरमीडिएट बटेक्स मान रहा हूँ, वन को मैं इंटरमीडिएट बटेक्स मान रहा हूँ, चेंज कब आएगा कि एक तो मैं टू से थ्री डायरेक्टली जा रहा था तो इनफाइनाइट था, मतलब कोई पाथ नहीं था डायरेक्ट जाने का, तो इनफाइनाइट था। नाउ आई एम गोइंग टू टू वन, मतलब वन मेरा इंटरमीडिएट बटेक्स मैंने कंसिडर किया, नाउ आई एम गोइंग टू टू वन एंड वन, मतलब अगर टू से थ्री जाना है तो इंटरमीडिएट बट एक्स वन है। इफ आई वांट टू मूव फ्रॉम टू से थ्री, सपोज आई वांट टू मूव फ्रॉम टू टू थ्री, टू से थ्री मूव करना है एंड वन आई एम कंसिडरिंग अस माई इंटरमीडिएट बट एक्स, तो कैसे जा रहा हूँ, टू से वन एंड वन से थ्री, टू से वन गया तो टू है एंड वन से थ्री गया तो फाइव है, तो फाइव प्लस टू कितना हो जा रहा है, सेवन, मतलब टू से वन एंड वन से थ्री, इंटरमीडिएट बट एक्स वन को मान के चल रहे हैं, तो टू से वन एंड वन से थ्री कितना हो जा रहा है, सेवन, टू प्लस फाइव सेवन। और पहले टू से थ्री में वैल्यू कितनी थी, टू से थ्री डायरेक्टली जाने की वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट थी, टू से थ्री का डायरेक्टली वैल्यू थी इनफाइनाइट, तो विच इज स्मॉलर, सेवन इज स्मॉलर इन माई केस, दैट मीन कंसिडरिंग वन एज इंटरमीडिएट बट एक्स, तो इस केस में ये स्मॉलर आया। तो इन द सिमिलर फैशन you will consider this, 3 से बन जाना है, suppose I want to go 3 to 1, suppose I am calculating this one now, 3 से 1 I want to go, so when I want to go 3 to 1, then what will happen कि 1 as intermediate बटेक, then 3 से बन जाऊंगा, 1 से बन जाऊंगा, तो 3 से 1 में वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, मतलब डायरेक्टली अगर जा रहा हूँ तब वैल्यू कितनी है, 2 से 3 से 1 डायरेक्टली जाना है, तो डायरेक्टली जाना है तो इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है डायरेक्टली जाने की। और इफ आई एम गोइंग थ्रू वन एस माई इंटरमीडिएट बटेक, तो वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री से वन, वन से वन, तो थ्री से वन की वैल्यू इनफाइनाइट है, प्लस वन से बन जाने की वैल्यू है जीरो, तो इनफाइनाइट मतलब सेम वैल्यू आ रही है, ये मिनिमम नहीं है इंटरमीडिएट नोड लेके, दैट मीन्स वी विल कीप द सेम वैल्यू ओवर हियर, मिनिमम आएगा देन ओनली यू हैव टू चेंज द वैल्यू। अब जैसे थ्री से टू जान, तो सिमिलर केस आई थिंक, तो यू विल फॉलो, मतलब यू कैन राइट दिस, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, सो यू विल कीप द सेम वैल्यू। नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि सपोज यू, तो इसका चेंज कहाँ पे आया था, इसमें चेंज कहाँ पे आया था, वेयर वाज चेंज, चेंज ये वाला आया था सेवन पे, मतलब सेवन इनफाइनाइट की जगह यहाँ वैल्यू क्या आ गई थी, सेवन वैल्यू आ गई थी, तो इसका जो एस वन टेबल बनेगा, जो एस वन टेबल बनेगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, and here also value was 1 2 3, now accept this, ये वैल्यू कब आई थी, जब इंटरमीडिएट बटेक्स मेरा बंद था, दिस वैल्यू व्हेन आई रिसीव, चेंज कहाँ पे आया था, इसमें आया था, बाकी सब वैल्यू सेम है, फ्रॉम प्रीवियस टेबल से बाकी सब वैल्यू क्या है, सेम है। चेंज कब आया था, चेंज आया था सिर्फ इसमें टू थ्री वाले में, कि जब मैं वन से गया टू से वन एंड वन से थ्री, देयर वाज चेंज। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन के ये वाली जो S1 टेबल बनेगा, ये वाली वैल्यू कब मिली थी, व्हेन आई वेंट फ्रॉम टू टू वन एंड वन टू थ्री, दैट मीन्स वन आई कंसिडर्ड इंटरमीडिएट बटेक, तो टू से थ्री में क्या डाल देंगे, वन एज माई इंटरमीडिएट बटेक, और बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी, टू थ्री वन, इस वाले थ्री की जगह क्या चेंज हो जाएगा नाउ, वन आ जाएगा, बिकॉज वन इंटरमीडिएट बटेक था, देन ओनली दिस चेंज वाज मेड, ये स्मॉलर वैल्यू मिली थी, टू से बन गया था, वन से थ्री गया, एंड रिमेनिंग वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डी टू, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डी टू, सी मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, यू हैव नॉट टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यू, तुम्हें सारी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है एक्चुअली, ठीक है, मोर इजी यू हैव टू मेक इट, यू हैव नॉट टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यू, वन टू थ्री, सारी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होती है एक्चुअली, व्हेन यू आर मतलब डी स्क्वायर, इफ यू आर कैलकुलेटिंग डी टू, यू आर कैलकुलेटिंग, दैट मीन्स टू इंटरमीडिएट नोड you are considering, if you are calculating d square, that means you are considering
टू इंटरमीडिएट नोड, और के की वैल्यू क्या है, 2 है। के वैल्यू इज 2, मतलब यू आर कंसीडरिंग टू इंटरमीडिएट नोड, एक तो 1 वाला इंटरमीडिएट नोड और सेकंड वन 2 वाला इंटरमीडिएट नोड, एंड के वैल्यू विल बी 2। when you are calculating d square, that means k value is 2, and there can be only two node as an intermediate node. One node is 1 and second node intermediate node is 2. So in this case, what will happen? If you are calculating d square, these are your intermediate node, k is equal to 2, and your intermediate node are 1 and 2. Then how many adjusts can be possible? If there are two intermediate nodes, 3 adjusts can be possible. 3 adjusts may be possible. कि मान लो अगर तुम्हारा अगर मान लो ये है, इस नोड से इस नोड पे जा रहे हैं, तो तुम्हारी टू इंटरमीडिएट नोड लेनी। इफ आई हैव टेकन टू इंटरमीडिएट नोड, तो एडजस्ट कितनी हो जाएंगी, इससे इस पे जाना है तो एक एड जे हो गई, एक एड जे हो गई, एक एड जो ये हो गई, तो मैक्सिमम कितनी एडजस्ट हो सकती है, 3 एडजस्ट हो सकती है इफ यू आर कंसीडरिंग टू एलिमेंट एज इंटरमीडिएट नोड। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि व्हेन एक शॉर्टकट होता है, इफ यू आर कैलकुलेटिंग डी स्क्वायर, इफ यू आर कैलकुलेटिंग डी स्क्वायर, देन देयर विल बी नो चेंज इन दिस वन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन D2 वाले में। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, कितनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओनली 1 2 3 4। तो डी स्क्वायर, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग के वैल्यू क्या ले रहे हो, 2 ले रहे हो, मतलब डी स्क्वायर यू आर कैलकुलेटिंग, दैट मीन्स योर इंटरमीडिएट नोड इज 2, 1 एंड 2, तो 1 का ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है। नाउ के वैल्यू तुम्हें 2 रखनी है, तो के वैल्यू 2। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट, कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं, एक तो ये करना है, एक ये करना है, एक ये कैलकुलेट करना है, और एक ये कैलकुलेट करना है। तो बाकी वैल्यू क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। बाकी वैल्यू सेम डाल देते हैं, 8 0 एंड 1 2 0 7। ऐसे ही वैन यू वाज कैलकुलेटिंग D1, तो 1 वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ ये 4 वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी थी। मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट करवा के दिखाई। यू हैव टू कैलकुलेट दिस 4 वैल्यू। जैसे ही डी स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 वाले रो और 2 वाले कॉलम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी द सेम वैल्यू। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट 1 1। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग 1 1, जब 1 1 कैलकुलेट कर रहे हो, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग 1 1, तो 1 1 वाला कैलकुलेट कर रहे हो, 1 1 to 1 आई वांट टू गो, तो आई एम कंसीडरिंग 2 दिस एज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स 2, के की वैल्यू 2 है, मतलब डी स्क्वायर आई एम कैलकुलेटिंग, तो 2 मेरा इंटरमीडिएट नोड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 1 से 2 और 2 से 1। प्रीवियस मैट्रिक्स देखोगे, 1 से 2 और 2 से 1 जाने का कितना लग रहा है, 1 से 2 जाने का लग रहा है 8, वैसे 1 से 1 जाने का था 0, और 1 से 2 जाने का कितना लग रहा है, 8 लग रहा है। एंड 2 से बन जाने का कितना लग रहा है, 2 से बन जाने का लग रहा है 2। तो टोटल इसमें कितना आ रहा है 10, और प्रीवियस वैल्यू कितनी डली हुई है 0। तो विच इज स्मॉलर, 0 इज स्मॉलर, सो सेम वैल्यू, नो चेंज। सिमिलर वे यू विल कैलकुलेट 1 से 3। 1 से 3 आई वांट टू कैलकुलेट, एंड 2 as my intermediate node, when I am calculating d square, 2 as my intermediate node, मतलब 1 and 2, एंड 2 वर्टेक्स को मैं इंटरमीडिएट नोड मान रहा हूँ, तो 1 से 2 2 से 3। तो आई हैव टू रीच फ्रॉम 1 से 2, एंड एक तो डायरेक्टली जा सकता हूँ 1 से 3, तो 1 से 3 डायरेक्टली जाने की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अदर वैल्यू 1 से 2 जा रहा हूँ, 1 से 2, 2 इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, तो 1 से 2 एंड 2 से 3, 1 से 2 में वैल्यू है 8, और 2 से 3 में वैल्यू है, 2 से 3 में वैल्यू है 7। That means this is bigger value if I am considering intermediate vertex, so I will not consider intermediate vertex, I will go directly. So same value will be there, no change. Now I will consider 3 से 1. Now I am considering 3 to 1. While I am considering 3 to 1,
while I am considering 3 to 1, what will happen? 2 as my intermediate vertex. तो 3 से 1 डायरेक्टली जाने में कितना लग रहा है? 3 से 1 डायरेक्टली जाने में लग रहा है इनफाइनाइट. एंड इफ आई एम कंसीडरिंग इंटरमीडिएट वर्टेक्स 3 से 2, 2 से 1, 3 से 2, 3 से 2 एंड 2 से 1. तो 3 से 2 जाने में कितना लग रहा है? 3 से 2 जाने में लग रहा है 1. तो 3 से 2 में 1 लग रहा है, 3 से 2 जाने में लग रहा है 1, और 2 से 1 जाने में कितना लग रहा है? 2 से 1 जाने में लग रहा है 2. तो टोटल कितना लग रहा है? 3. और डायरेक्टली जा रहे थे इनफाइनाइट लग रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू मेक चेंजेस. तो आप ये कितना कर देना है? 3 कर देना है. तो देखो 2 से 3 जा रहे थे इनफाइनाइट था. नाउ आई एम कंसीडरिंग 2 से ये 3 से है, 3 से 2 जा रहे, 3 इस वाले में चेंज करना है 3 से 1. while I was going 3 to 1 तो इनफाइनाइट मिल रहा था मुझे. अब नाउ आई एम गोइंग थ्रू वर्टेक्स 2, तो मुझे क्या मिला? 1 प्लस 2, तो 3. तो 3 वैल्यू आई हैव रिटर्न हियर. ऐसे ही सिमिलर वे यू विल डू हियर. हियर आल्सो देयर विल बी नो चेंज, मतलब डायगोनल में तो एक्चुअली चेंज हो गई नहीं. तो सेम वैल्यू यू हैव टू कीप हियर. मतलब नाउ व्हाट आई विल डू हियर. तो नाउ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब जिसमें चेंज हुआ है तो एस वैल्यू में भी चेंज कर दोगे. यू विल मेक द चेंज इन एस वैल्यू आल्सो. तो एस वैल्यू में मतलब मैं इसी टेबल में कर दे रहा हूँ. यू क्रिएट अनदर टेबल. ठीक है, आई एम डूइंग हियर इटसेल्फ. तो इसमें चेंज क्या आ जाएगा? इस वाले में चेंज हुआ है. तो यहाँ पे जब 1 वर्टेक्स कंसीडर किया था इंटरमीडिएट वर्टेक्स, अब कौन सा? बाकी सब चीजें सेम होंगी बिकॉज देयर इज नो चेंज. तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? 2 वर्टेक्स इंटरमीडिएट वर्टेक्स, देन ओनली चेंज हैज डन. नाउ तो ये मेरा S2 टेबल हो जाएगा फिर. देन इट विल बिकम S2 टेबल. नाउ आई वांट टू कंसीडर D3 आई वांट टू मेक. तो D3 में देखो व्हाइल आई एम कैलकुलेटिंग D3, तो 3 वाले में कोई चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज इन 3 वाला. तो और डायगोनल में कोई चेंज नहीं होता है. तो हमेशा याद रखना यू हैव नॉट टू कैलकुलेट दिस मच. मैंने तो एक प्रोसेस बताया है कैलकुलेट करने का. तो मैं जब D3 बनाना है तो क्या करोगे कि D3 बनाने के लिए 1 2 3, while you want to create D3, ये 2 आ गया, 1 2 3. while you want to create D3, तो कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकते हैं? मतलब 3 वाले में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे. एंड इस वाले में डायगोनल वाला चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स यू हैव टू कीप सेम वैल्यू 0 0 0. यहाँ पे आ जाएगा 7, हियर इट विल कम 5. यहाँ पे आ जाएगा 3, और डायगोनल वाले में कोई चेंज होता नहीं है. और जब व्हाइल आई एम कैलकुलेटिंग D3, तो मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा. प्लस डायगोनल वाले में कोई चेंज नहीं होता है, सेम वैल्यू. अब कैलकुलेट कितनी करनी है? ओनली 2 वैल्यू. while I am going from 1 to 2 डायरेक्टली, 1 से 2 डायरेक्टली जा रहे हैं 8 लग रहा है. एंड आई एम गोइंग थ्रू इंटरमीडिएट वर्टेक्स 3, 1 से 2 जाना है. अगर इंटरमीडिएट वर्टेक्स 3 के थ्रू जा रहे हैं तो 1 से 3, 3 से 2, 1 से 3 5 है, 1 से 3 5 है. एंड 3 से 2, 1 से 3, 3 से 2, और 3 से 2 कितना है? 1 है. तो 5 प्लस 1 6, और डायरेक्टली जा रहे थे 8 लग रहा था. तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा? आई विल राइट हियर 6. मतलब चेंज हुआ है इसमें, इस वाले में चेंज हुआ. सिमिलर वे यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन आल्सो. एक ये कैलकुलेट करना है 2 से 1. 2 से 1 इफ आई एम गोइंग डायरेक्टली, 2 से 1, 2 से 1 इफ आई एम गोइंग डायरेक्टली कितना लग रहा है? 2 लग रहा है. 2 से 1 while आई एम गोइंग डायरेक्टली 2 लग रहा है. इफ 2 से D3 कैलकुलेट कर रहे हैं, के एस माई इंटरमीडिएट बट है, तो के की वैल्यू 3 है. 2 से 3 और 3 से 1 जा रहे हैं. 2 से 3 एंड 3 से 1, 2 से 3 जा रहे हैं 7 है, और 3 से 1 जा रहे हैं, 3 से 1 जा रहे हैं 3 है. तो ये भी ज्यादा है. दैट मीन्स सेम वैल्यू विल रिमेन, क्योंकि 2 जो वैल्यू थी वही स्मॉलर है. तो सेम वैल्यू यू विल की. क्लियर है? और इसका S3 में चेंज कहाँ पे आया है? इसमें आया है. तो अगर S2 को S3 में कन्वर्ट करना है
तो चेंज कहाँ पे, जहाँ पे चेंज आया दैट प्लेस यू हैव टू मेक द चेंज, तो 2 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ यू कैन चेक कि जो मेरा फाइनल मैट्रिक्स है, तो दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स। फाइनल मैट्रिक्स, और ये वाला तुम्हारा एस वाला फाइनल हो गया है, S3। ये क्लियर है, समझ में आया कुछ? हेलो, यस सर। समझ में आया ना ये? यस सर, आया है सर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा S3। S3 में इरेजर, ये वैल्यू थी 6, तो मैं डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ उसको। और ये भी हटा देता हूँ। तो ये वैल्यू है आपकी 6, तो 6 लिख गई, ये S3 आ गया, ये D3 आ गया। अब नाउ तुम ऐसे मतलब कितने भी नोड हो सकते हैं। तो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट 1 से, मान लो 1 से 3 तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो यू विल सी द टेबल कि कितना मेरा लग रहा है, 1 से 3 जाने का लग रहा है 5। और 1 से 3 जाने किस नोट के थ्रू जा रहा है, 3 नोट के थ्रू जा रहा है, मतलब कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है, 3 नोट के थ्रू जा रहा है, तो 1 से 3 जा रहा है, दैट मीन नो इंटरमीडिएट वर्टेक्स। तो मतलब 1 से 3 डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 से 2 मुझे फाइंड करना है, 1 नोट से 2 नोट, तो ये 6 वैल्यू S3 में कैसे आ गई? यहाँ पे क्या वैल्यू थी, 6 नहीं होगी भाई। 6 तो वैल्यू थी इसकी, और कब ये चेंज हुआ था, व्हेन ये 3 था। ठीक है, व्हेन आई वांट टू गो 1 से 2, व्हेन आई वांट टू गो 1 से 2, इफ आई वांट टू गो 1 से 2, किस नोट के थ्रू जा रहे हैं, आई एम गोइंग थ्रू नोट 3, नोट 3 के थ्रू जा रहे हैं। तो तो इस हिसाब से यू विल चेक इट। ठीक है, वैसे मुझे बताना तो कुछ और भी था। तो अगर देखो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता, मान लो डायरेक्शन नहीं दिया गया होता, तब तुम्हें और कम चेक करना था। मान लो D0 से D1 निकालना था। मान लो D1 निकालना था, तो पहले रो तो पहले कॉलम चेक नहीं करते, पहले रो एंड पहला कॉलम चेक नहीं करते। दूसरा, अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ और डायगोनल चेक नहीं करते, तो ये भी वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी। अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता, मान लो इफ इट इज डायरेक्टेड ग्राफ, मैं बोलता कि ये मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ होता 3 से 2, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया होता, दैट मीन सेम वैल्यू 3 से 2 की होती, सेम वैल्यू 2 से 3 जाने की होती। तो तुम्हें कोई एक कैलकुलेट करना था, मान लो 2 से 3 एक कैलकुलेट कर लेते ये वाला, और 3 से 2 में सेम वैल्यू आ जाती अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता। तो जो वैल्यू यहाँ पे आती, सेम वैल्यू यहाँ आती, मतलब कैलकुलेशन कितना करना था, वैल्यू वाज कैलकुलेटिंग